Looks like an English countryside ground, and I've got personal memories on this ground. But this is the match which is coming to you. Sector 16 Stadium, historic stadium, and Mumbai Heroes are going to take Bhojpuri Dabang. We're all set for the toss. This is the first game of the evening, and this is going to be a big one. Mumbai Heroes taking on Bhojpuri Dabangs, and I've got a few special people with me alongside for the toss. First of all, Ritesh Deshmukh, the captain of Mumbai Heroes. Then Manoj Tiwari, the captain of Bhojpuri Dabangs. And this is a specially minted Parle coin. Manoj is just having a look at it. And it's going to be Parle G is the call from Manoj, but Ritesh has won the toss. So Ritesh, first of all, what are you going to do? We're going to bat first. Looks to be a very good wicket, very conducive for batting. What's the target in mind, Ritesh? I think they're a great batting side, so anything above 180 will be a defendable score. And also, Ritesh, a very important game for you, just seeing the context of this game, because you lost the last one, played really well in the first, but this is going to be a key game for you. Yeah, we have to win this game. We have no choice. And what about the team combination? Some change in the team from the last game we saw in Ahmedabad? We are going with the same team. And anything about this team, because they have played well, you know, some planning, some strategy? No, I think Bhojpuri have been great from season 1 since they came to this tournament. And with a strong leadership like Manoj Bhai, I think they're performing really well. So we'll try and better them this time. And just a word, Ritesh, about Chandigarh. Looks to be a lovely venue. I think it's a fantastic venue, great weather. I think it's nippy and it feels like you're playing in England, but you're playing in India. Apne desh mein khel rahe. Very well said. All the best and good luck for this game. Thank you, sir. मनोज भाई, टॉस नहीं जीते पर आपने अभी तक जो खेल खेला है सबका दिल जीत लिया है. हाँ, थैंक यू वेरी मच अजय भाई. और मैं समझता हूँ कि आज वो दिल जीतने का वो सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे. और ये मैच हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जीत करके अपने पूरे दुनिया भर में देखने वाले को एक और गिफ्ट दें हम भोजपुरी दबंग्स की तरफ से. जी हाँ, और आपकी जो टीम की जो फॉर्म है वो बहुत जबरदस्त है. जिस प्रकार आप खेल रहे हैं, जिस प्रकार आपकी लय है, खुद की जो लय है वो बहुत जबरदस्त है. हाँ सर, ऊपर वाले का करम है. मतलब अब क्रिकेट है, सब कुछ अपने से हो नहीं सकता, लेकिन फिट रहना जरूरी है. और ये सीसीएल इस मुकाम पे आ गया है जहां मुझे लगता है कि अब सबको अच्छा खेलना होगा और अपनी अपनी इंडस्ट्री के लिए अच्छा करना होगा. जी हाँ, बहुत बढ़िया कहा. और आज के मुकाबले में कुछ आप अलग कहना चाहेंगे? कोई अलग सोच है आज के मुकाबले के लिए? नहीं, बस ठीक है. हम लोग आज पिछला मैच चूंकि हम लोगों ने चेस करके ही जीता था, तो इस बार भी हम लोग चेस करके जीतेंगे. इस बार हम लोग कम से कम रन में इनको मुंबई हीरोज को रखेंगे और निश्चित रूप से हम उनको बहुत सीरियसली लेते हैं. मुंबई हीरोज बहुत अच्छी टीम है, बट आज हम उनको एक कड़ा टक्कर देंगे. जी हाँ, और आपको जाने से पहले 2-3 पंक्तियां जो आपकी स्पेशलिटी है और बड़ा मजा आता है सुनने में, और जितने तमाम दर्शक आए उनको भी मजा आएगा. नहीं, बस हम यहाँ जो भी स्टेडियम में लोग आए हैं और दुनिया भर में जो लोग देख रहे हैं उनको फिर से याद दिलाना चाहूंगा अपना वो गाना, हो जिया हो बिहार के लाला, अजिया तू 1000 साला, जिया हो चंडीगढ़ के लाला, जिया 10,000 साला. सब जीते रहो, जीते रहो, जीतते रहो. बहुत बढ़िया, धन्यवाद और शुभकामनाएं आज के लिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सीसीएल. So the news from the center is Mumbai Heroes, they have won the toss and they're going to bat first. तो ये है खबर है, परफॉर्मेंस है, पर भोजपुरी दबंग्स जो हैं वो मनोज तिवारी की कप्तानी में बड़ी जबरदस्त खेल का उन्होंने अब तक मुजाहरा किया है. यादव, तिवारी, शर्मा, सिंह, ओझा जैसे अपनी इंडस्ट्री के अपनी टीम के दिग्गज हैं, खान, यादव, निरुआ और असगर. ये मैच मुंबई हीरोज को जीतना बहुत जरूरी है अगर आगे उन्होंने इस टूर्नामेंट में जाना. ये है अब तक पॉइंट्स टेबल जो है. दबंग जो है 2 मैचेस खेल चुके हैं और दोनों जीत चुके हैं, तो लगभग निश्चित है सेमीफाइनल में जाना उनका. मुंबई हीरोज 2 मैचेस खेल के, बंगाल टाइगर्स 2 मैचेस खेल के एक जीत दर्ज कर चुके हैं. और ये ग्रुप बी की अगर आप पॉइंट्स देखें तो तेलुगु वॉरियर्स पिछले साल के चैंपियन, जबरदस्त अभी भी खेल उनका जारी है, अनबीटन रिकॉर्ड है. कर्नाटका बुलडोजर्स जो कि बड़ी जबरदस्त टीम है अब तक हिस्ट्री में देखा जाए सीसीएल की, वो भी एक मैच हार चुकी है और केरला स्ट्राइकर्स ने ये उन्हें हार दी थी. तो उसमें भी टक्कर पूरी है कि दूसरी टीम कौन सी सेमीफाइनल में जाएगी. और मैं हूं अब अतुल वासन कमेंट्री बॉक्स में. मेरे साथ हैं अब रितेंद्र सिंह सोडी जो कि इस मैदान पे काफी छक्के मार चुके हैं, काफी अपना दम दिखा चुके हैं. रितेंद्र अब कमेंट्री कर रहे हैं इस मैच में, आप कैसा लग रहा है?
बहुत बढ़िया अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चंडीगढ़ पधारे। आपने भी कम छक्के नहीं मारे हैं देश के किसी भी ग्राउंड में। और ये कुछ हसीनाएं, सीसीएल का जादू सर चढ़कर बोलता हुआ पूरे भारत में। आज मुंबई बनाम भोजपुरी दबंग, बड़ा गेम। कप्तान रितेश देशमुख ने समीर कोचर को फिर से ओपनिंग करने के लिए भेजा है। रितेश देशमुख खुद कप्तानी के साथ साथ ओपनिंग बल्लेबाजी करेंगे। जानते हैं कि एक अब टॉस जीतने के बाद अलग सा प्रेशर है, क्योंकि पहले अब आपने बल्लेबाजी करने का जो निश्चय किया है, अब आपको टोटल लगाना होगा बोर्ड में, क्योंकि ये इतनी अच्छी जबरदस्त पिच नजर आ रही है मुझे जितेंद्र कि यहाँ पे लंबे स्कोर चाहिए अगर मैच बचाना है तो। बिल्कुल आपने ठीक बोला अतुल, बहुत अच्छा विकेट है, प्लासिड ट्रैक है और यहाँ पे सलामी बल्लेबाजी को पनपना होगा, पार्टनरशिप्स करनी होंगी, क्योंकि हमने अमूमन देखा है अगर आप सलामी बल्लेबाजी अच्छी करते हैं 2020 क्रिकेट में तो आप बड़ा टोटल खड़ा कर सकते हैं। और एक और बात है, मुझे हैरानी भी है कि पहले क्यों बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठीक है आप 2 बजे के लगभग की शुरुआत है और थोड़ी धूप पड़ रही है सुबह से, पर फिर भी यहाँ पे हमेशा बॉल हिलता है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर, ऐसे मौसम में ठंडी जो हवा चलती है यहाँ पे और रात को ठंड पड़ती है तो जो हिलेगा बॉल उससे मुसीबतें ओपनिंग बल्लेबाजी में आ सकती है और बाद में थोड़ा सेटल डाउन होने पे बल्लेबाजी और आसान होगी। इसको देखते हुए पहले बल्लेबाजी हिलाने में बहुत माहिर, पिछले गेम में अहमदाबाद में कमाल की बॉलिंग की थी, पहले ओवर में ही 2 बड़े झटके दिए थे। गेंद सीधा कवच के हाथों में, कोई रन नहीं मिलेगा। सदी हुई गेंद करते हैं, लाइन इज वंडरफुल, कंट्रोल बड़ा जबरदस्त है और इतनी पेस तो नहीं है, शायद स्विंग कराने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, चेहरों पे थोड़ी सी टेंशन जरूर है टीम को लेके। गेंद मनोज तिवारी एक बहुत अहम कड़ी है अगर हम भोजपुरी दबंग की बॉलिंग की बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक इस टूर्नामेंट में। और ये देखिए बहुत अच्छा एक्शन और सब पता लगता है हाथ से कि इन स्विंग कराने की कोशिश में है, पर टप्पा बड़ा अच्छा ऑफ स्टंप के बाहर। और यही है कि बॉल अगर आप लेग स्टंप के बाहर ना भेजें तो बल्लेबाजी की खासी मुसीबत में आ सकती है। वाइड बॉल थोड़ा ज्यादा ही दूर कर दिया और थोड़ा सा कंधा गिर गया, हाथ प्रेस कर दिया उन्होंने। सुनील शेट्टी मैच में खेल नहीं रहे हैं पर एक फादर फिगर की तरह मुंबई हीरोज के साथ रहते हैं, जबरदस्त अदाकार हैं और बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन है, ऑलराउंड इंसान कहूंगा मैंने। बेहतरीन शॉट, 4 रन मिलेंगे। थोड़ा सा छोटा गेंद बहुत जल्द बैकफुट पे गया और उड़ा दिया। और ऐसे चौकी की जरूरत इस समय मुंबई हीरोज को, बड़ा स्टार्ट वो चाहते हैं और यहाँ पे इलेशन जुबिलेशन मुंबई खेमे में। जी हाँ, पेस नहीं है तो लेंथ तो थोड़ा सा बराबर रखना होगा। बहुत समय मिल गया समीर को बैकफुट में जाके, हालांकि पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, फिर भी इतना बल्ला था बॉल के ऊपर कि 4 रन मिल जाएं। टॉपेज भी हो सकता था, कई बार आप ज्यादा इंतजार जब करते हैं तो आप शॉट पहले खेल जाते हैं। और फिर से गैप में गया है, देखना ये है कि 4 रन मिलेंगे। ओ हाथ लग गया या पैर लग गया, मुझे लगता है कि ये 4 करार दिया जाएगा। अतुल बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे रिप्ले देखना है। जब बॉल वो रोक रहे थे उनके पैर बाउंड्री से बाहर थे तो इसको चौका दिया देना चाहिए, लेकिन हमें इंतजार करना होगा इस समय। और ये देखिए एक्शन रिप्ले, बेहतरीन तरीके से खेला, पैर निकाला। पिछले गेंद की थोड़ी मुझे लगता है ओवर कॉम्पनसेशन कर दी। ये हाथ में बॉल है और जब कोई भी शरीर का हिस्सा अगर बाहर लग जाए रोप के तो खुद ही दे देना चाहिए था इस समय। शायद गर्मा गर्मी जो मैच की है उसमें ख्याल नहीं दे पाए। कई बार खिलाड़ी इतना लिप्त हो जाता है, लीन हो जाता है मैच में कि उसको ख्याल नहीं रहता। हालांकि इतनी मुश्किल डिसीजन नहीं है थर्ड अंपायर के लिए, तो ये बाउंड्री निश्चित रूप से मिलेगी समीर कोचर को। तो दूसरी बाउंड्री इस मैच की। अच्छी शुरुआत, थोड़ी सी और सधी हुई गेंदबाजी करनी होगी तिवारी को। अच्छी गेंद, थोड़ा अंदर आया मनोज तिवारी, बहुत बढ़िया अंदर लेके आते हैं बॉल और यहाँ पे 2 रन लेना चाहते हैं। जी हाँ, आसानी से 2 रन पूरे किए, एक अच्छा ओवर। TCL सुपरफैन कॉल 533399 एंड विन 1 लाख रुपीस। एक आसान मौका बड़ी रकम जीतने का। कोचर 10 रन पर पहुंच गए हैं, एक अच्छा स्टार्ट उनको मिला है। मनोज तिवारी आज थोड़े से
रस्टी नजर आ रहे हैं लेकिन खतरनाक बॉलर हैं। अच्छी गेंद, ये है लाइन और लेंथ डिप करती हुई और बड़ी खूबसूरती से खेला समीर कोचर ने और तीसरी बाउंड्री ओवर की। अच्छी गेंद पे भी 4 रन मिल गए तो अब प्रेशर आ गया दबंग्स में 15 भी के नुकसान के पहले ओवर के बाद। पहला गेंद खेला है रितेश देशमुख ने, अच्छी गेंद फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। टेक्निक रितेश की बड़ी जबरदस्त है, लगता है कि बचपन में कोचिंग जरूर ली है उन्होंने, क्योंकि एक खिलाड़ी का जो लहजा रहता है खेलने का तरीका, ये पिछले ओवर की जो आखिरी गेंद थी कितनी बढ़िया तरीके से बैट का जो मुंह है वो खोल दिया और गैप देखिए कितना बढ़िया मिला। आउटफील्ड बहुत तेज है, चेस करके रोकना मुश्किल है, डाइव लगानी पड़ेगी और डाइव लगाते ही इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। ओ चलिए थोड़े से ग्लव्स लग गए। इस शुरुआत को कैपिटलाइज करना होगा मुंबई हीरोज को, क्योंकि जानते हैं कि इस समय भोजपुरी दबंग्स जो टीम है उनके लिए कम से कम 175-80 रन चाहिए इस मैच में, क्योंकि विकेट जो है वो बेहतर ही होगा। 20 ओवर के मैच में विकेट को ज्यादा असर नहीं होने वाला। जी हाँ, 170-75 रन तो यहाँ पे करने ही होंगे। प्लेसेड ट्रैक है, चंडीगढ़ बहुत फेमस है अच्छी बैटिंग के लिए और यहाँ पे मुंबई भले भांति जानती है कि उन्हें लंबे रन खड़े करने होंगे। प्राण सिंह चाहेंगे इस समय विकेट लेना बहुत जरूरी। थोड़े रस्टी नजर आ रहे हैं, एक वाइड गेंद भी किया है। बाकी पूरी तरह से बैट पे आया नहीं, ओ रोक नहीं पाए। फिर से स्लाइड जो करने की टेक्निक है उसी तरह से इस तरह का बॉल रोका जा सकता है। बड़ी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं समीर कोचर। आगे का बॉल ऊपर उठा के मारने में कोई हिचकिचाहट नहीं है उन्हें, जानते हैं कि विकेट इतना ट्रू है और हल्का सा मिडल हो गया और इनफील्ड टप गया तो 4 मिल जाएंगे। बस आपको टाइमिंग पे ज्यादा गौर करना है, बनिस्बत की जोर से मारने की कोशिश करें। बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं समीर कोचर। उनको स्टार्ट मिला है हर मैच में लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं, तो आज जरूर उस चीज को ये बदलना चाहेंगे। 30-40 को लंबे 70-80 में कन्वर्ट करें तो मुंबई हीरोज एक लंबे रन खड़ा कर सकती है। यहाँ पे कुछ इंजरी इश्यूज नजर आ रहे हैं। इंजरीज इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होती है और CCL में भी होती है। ये हार्ड ग्राउंड है यहाँ पे और घुटना जोर से लग गया। फुल टॉस का फायदा उठा नहीं पाए, थोड़ा सा क्रॉस द लाइन मारने चले गए समीर कोचर। एक और बाउंड्री का मौका था। पूरा आनंद लेते हुए यहाँ पे बच्चे बूढ़े जवान और ये मुंबई की टीम समीर कोचर, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, आफ्ताब, शिव दसानी, वो आज अच्छा करना चाहेंगे। अपूर्वा लाकिया जबरदस्त बॉलर हैं, इंद्रनील सेनगुप्ता। बढ़िया लाइन है ये, इन कटर करने की कोशिश है, ज्यादा रूम नहीं दे रहे बल्लेबाज को। अगर लेंथ सही रखेंगे तो सीधे बल्ले से ही मारना पड़ेगा। अरमान कोहली आज मैच नहीं खेल रहे हैं और टीम के साथ सपोर्ट बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा बल्ला घूम गया हाथ में, जो पावर आनी चाहिए थी शॉट के पीछे वो आ नहीं पाई। TCL सुपर फैन कॉल 5333599 और 1 लाख जीतने का पूरा मौका है इसमें। और खेल दिया है जबरदस्त तरीके से, फाइन लेग ऊपर, दिशाहीन गेंदबाजी, 4 रन मिलेंगे। 26, 2 ओवर की समाप्ति। तालमेल बिठाएं तो इनफील्ड टपा सकते हैं। तो ये अच्छी एक कप्तानी और अच्छा एक क्रिकेटिंग ब्रेन है मुझे लगता है उनमें। वो जान गए हैं कि नई गेंद से उनकी ज्यादा दाल नहीं गलेगी, तो स्पिनर को लेके आए हैं और बाद में अपने ओवर जब थोड़ा सा बॉल रफ हो जाएगा तब करने की कोशिश करेंगे। और ये आखिरी बॉल जो था ये फ्री हिट माना जाता है, लेग साइड पे ड्रिफ्ट करती हुई बॉल जो है इसको उठा के मार दिया है। ओहो, कह रहे हैं भाई ऑफ स्टंप पे बाहर ही रखें, इधर मत करें बॉल। ये भी जरूर थोड़ी बहुत वुमेन क्रिकेट खेली लगती हैं, काफी चिंताजनक लग रही हैं और फील्ड प्लेसिंग बाहर से ही सेट कर रही हैं। कई बार तो रितेंद्र मुझे लगता है कि यहाँ इंडिया में कोचेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 100 करोड़ लोग हैं वो इतने बढ़िया कोच हैं, उन्हें सब पता है। अतुल, आपको और हमें भी बहुत एडवाइजेज मिली हैं, लेकिन कहा जाता है सुनो सबकी करो अपनी।
बहुत बढ़िया फील्डिंग, 4 रन रोक लिए टीम के लिए, 3 रन बचाए टीम के लिए। एक डाइविंग स्टॉप जो था बिल्कुल गैप में मारा था रितेश ने। थोड़े नाराज होंगे कि ये मौका बाउंड्री का चूक गया। बढ़िया बैलेंस और एक हाथ से रोक लिया। पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अच्छी गेंद खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, 2 रन लेना चाहेंगे। जी हाँ, आराम से मिलेंगे। क्या बैटिंग कर रहे हैं समीर कोचर। इस समय 25 रन पर पहुंच गए हैं महज 10 गेंदों में। 15 गेंदों में 29 रन बना लिए मुंबई हीरोज ने। जो प्लानिंग की थी इस मैच से पहले, अब तक बिल्कुल कारगर साबित हो रही है। ये प्रेशर डालना अच्छी टीम पे बहुत जरूरी है। जब तक प्रेशर नहीं आएगा तब तक आप गलतियां नहीं करेंगे, आप अपने एक कंफर्ट लेवल में मैच खेलते चले जाएंगे। तो ये समीर कोचर ने जो काउंटर अटैक किया है, इससे अब उभरना होगा भोजपुरी दबंग्स को। थोड़ा सा छोटा गेंद खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा। बहुत ही जरूरी अतुल यहाँ पर विकेट निकालना भोजपुरी दबंग के लिए। मुझे तो लगता है कि एक फील्डर जो है ऑफ स्टंप से निकाल के लेग स्टंप पे डालना चाहिए। ऑफ स्पिन कर रहे हैं और मिडल ऑफ स्टंप की लाइन पे अगर करेंगे तो विद द स्पिन ही मारा जाएगा। और 5 खिलाड़ी ऑफ स्टंप पे जो रखे गए हैं वो थोड़े जाया से हो रहे हैं मुझे लग रहा है। एक खिलाड़ी और अगर डालें, हालांकि आप सिर्फ आउटफील्ड में 2 ही रख सकते हैं अभी तक, पर एक और सर्कल के कोने पे ले आए। ओ, मुझे लगा कि थोड़ा सा आउटर एज लग गया था और ये कैच ड्रॉप है। जी हाँ, संभलना होगा भोजपुरी दबंग को, अच्छी फील्डिंग करनी होगी। और यहाँ पे विकेट कीपर के दोबारा एक बड़ा लैप्स। अच्छी गेंद, काफी जोर से खेलना चाहते थे। ये देखिए भारी किनारा बल्ले का और एक आसान सा मौका। आसान तो मैं नहीं कह सकता रतिंदर, क्योंकि बॉल ने एज लिया और हल्का सा थोड़ा एंगल बन के गई, पर पहले खड़े हो गए थे विकेट कीपर। अगर बैठे रहते तो शायद बेहतर एक चांस रहता। अब गेंद कॉम्पनसेशन में थोड़ा तेज करने की कोशिश, ऐसा लग रहा था कि शायद स्टेप आउट कर जाएंगे रितेश। ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है। 31 रन बना चुके हैं, तीसरे ओवर की अभी एक गेंद भी बची है, तो लगभग 200 के औसत से स्कोरिंग चल रही है। और फिर खेल दिया है सीधे बल्ले से और इंपॉर्टेंट चौका। बेहतरीन बल्लेबाजी, 35 बिना कोई नुकसान के 3 ओवर की समाप्ति। यादव बॉलिंग करेंगे और 2 बॉलिंग चेंजेस हमने देख लिए हैं सिर्फ 3 ओवर में। थोड़ा सा छोटा गेंद, फील्ड ऑन साइड पे ऊपर और खेल दिया है 4 रन के लिए। खराब बॉलिंग अतुल। बिल्कुल, मुझे लगता है कि फील्ड के लिहाज से गेंदबाजी नहीं हो रही है, ये एक दिक्कत है। शायद कंट्रोल इतना नहीं है और राउंड द स्टंप्स आप गेंदबाजी कर रहे हैं। आपके दोनों फील्डर, एक थर्ड मैन आपने पीछे लिया हुआ है जो कि बिल्कुल जाया है। आप अगर एक डीप स्क्वायर लेग रख लें या मिड विकेट के आसपास, तो जिस तरह की लय में, जिस तरह की मेंटालिटी नजर आ रही है बल्लेबाजों की, आपकी शॉट वहीं जाने वाला है। तो थोड़ी सी अब सोच में दिक्कत है। कप्तानी मुझे लगता है कि थोड़ी सी और जम के करनी होगी तिवारी को। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, एक लेफ्ट स्टंप के बाहर, एक ऑफ स्टंप के बाहर। बहुत संभलना होगा बॉलर को। और यहाँ पर मनोज तिवारी को लगता है यादव के पास आना होगा, बात करनी होगी और जो फील्ड प्लेसिंग है उसको और जबरदस्त तरीके से तैनात करना होगा। ये देखिए, अब ये है खास, तैयार है ढोल लेके। एक यहाँ का बहुत एक बढ़िया पहलू है, यहाँ जो ढोल बजता है जब, ये अब शायद गेंदबाज को भी ढोल के साथ रिदम आ जाए। बेहतरीन गेंद, चाप नहीं सुधारी है इस समय यादव ने। और यहाँ पे सुनील शेट्टी जरूर खुश होंगे। अभी तक जिस तरह मुंबई खेली है, लेकिन गेम को बदलते समय नहीं लगता और भोजपुरी दबंग के लिए इस समय विकेट लेना बहुत ही अहम। फिर मिस कर गए, चूक कर गए। ऑफ स्टंप पे ज्यादा जोर से मारने के चक्कर में जो टाइमिंग है वो नहीं आ पाई। भोजपुरी दबंग की जो ये सपोर्टर्स हैं
इनके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन है, जानते हैं कि विकेट लेना बहुत जरूरी है एक, अगर इस रिदम को तोड़ना है मुंबई हीरोज के। इसके बाद स्ट्रोक प्लेयर्स की कमी नहीं है, आफ्ताब शिवदसानी, अपूर्वा लाखिया, शबीर अहलुवालिया। पीसीएल सुपर फैन क्वेश्चन है कि हु इज द कैप्टन ऑफ मुंबई हीरोज टीम, ये ट्वीट करें इसका जवाब और प्राइज जीतें। TCL Superfan call 5333-599 win 1 lakh cash today. आसान सवाल और बड़ी रकम। खेल दिया है पॉइंट की दिशा में, एक ही रन मिलेगा। यहाँ पे ओवर की समाप्ति 41 बिना कोई नुकसान के। और ये पंजाबी तड़का सर चढ़कर बोलता हुआ चंडीगढ़ में, ढोल बजने लगा, गांव सजने लगा और सीसीएल पार्ले क्राउड लुत्फ लेता हुआ इस मैच का। यामा रेव्स योर हार्ट, और यहाँ पे हार्ट थोड़ा सा जरूर ज्यादा धड़क रहा होगा भोजपुरी दबंग को। और यहाँ पे भारी अपील, लेकिन अंपायर ने इसको नॉट आउट करार दिया। और क्या रेफरल दिया जाएगा? करीबी मामला है, अगर बल्ले से बॉल नहीं लगी है तो, और अंपायर भी एकदम से चल पड़े तो उनको ये था कि शायद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ स्टंप के बाहर है या बल्ले से बॉल लगी है। अगर ये दोनों नहीं है तो ये भोजपुरी दबंग्स के तरफ जाता हुआ नजर आ रहा मुझे, तो मुंह में पता लग जाएगा। चूक गए रितेश देशमुख, बैकफुट से हल्का सा स्टीयर करना चाहते थे लेग स्टंप पे। बड़ा विकेट हो सकता है इस समय, हालांकि रितेश ने ज्यादा बाउंड्रीज तो नहीं लगाई है, सारी स्कोरिंग जो है ज्यादा समीर कोचर ने की है, पर एक जो पार्टनरशिप बनती है, साझेदारी बनती है, उससे जो दबाव आता है वो पूरी तरह से भोजपुरी दबंग के ऊपर आया था। इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, नो बॉल नहीं है बिल्कुल, सर एक लेजिटिमेट डिलीवरी है। और अब देखिए टप्पा पड़ा और ओ बिल्कुल सामने। आसान नहीं होगा बिल्कुल थर्ड अंपायर के लिए, टर्न होकर लेग स्टंप को मिस भी कर सकता है, लेकिन जो इंपैक्ट है वो तो बीचों बीच है। बिल्कुल आसान डिसीजन नहीं। एंगल भी है, गेंदबाज ने काफी दूर से विकेट की गेंदबाजी की है और ड्रॉप हो गया शोल्डर। और एंगल से बॉल, आपने सही कहा कि लेग स्टंप से बाहर निकलने की उम्मीद पूरी है, तो लाइन ऑफ स्टंप के बाहर है। अगर हिट इन लाइन और पिचिंग लाइन और हिट इन लाइन होता है तो आसान रहता है अंपायर के लिए, ऐसा नहीं हुआ। अगर साइड की तरफ से देखेंगे तो शायद आगे भी नहीं आए रितेश देशमुख, इतना क्रीज के बीच में से ही खेल गए हैं, तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है बॉल को ट्रैवल करने का। देखना होगा किस तरीके से थर्ड अंपायर सोचते हैं, सबकी अलग सोच। बॉल तो जरूर एंगल से किया गया है, टर्न भी हो रहा है, लेकिन इंपैक्ट बीचों बीच है। देखिए मुश्किल है, अगर इतने रिप्ले देखने पड़े तो शायद अंपायर भी श्योर नहीं है, और अगर श्योर नहीं है तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बल्लेबाज को जाना चाहिए। कहा जाता है इट्स अ बैट्समैन्स गेम। क्या डिसीजन आएगा? और यहाँ पे एक बड़ा झटका, रितेश देशमुख को आउट दे दिया गया है। LBW, काफी सोच विचार किया होगा थर्ड अंपायर ने, और अंत में उन्होंने सोचा कि जो इंपैक्ट था बिल्कुल बीचों बीच, और रितेश देशमुख वापस पवेलियन जाते हुए एक अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन एक अच्छा जबरदस्त ब्रेक थ्रू मिला है इस समय भोजपुरी दबंग को। रितेश देशमुख 7 रन उन्होंने बनाए, लेकिन साझेदारी बहुत अच्छी चल रही थी। 41 पर 1।
में मुंबई हीरोज ने एक बड़ी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन ब्रेक थ्रू जरूर मिल गया है भोजपुरी दबंग को। और मेहरबानी आए हैं क्रीज पर, अच्छी फॉर्म में है, आते ही खेल दिया है, 2 रन तो मिल जाएंगे आसानी से। जी हाँ, अच्छी रन बिटवीन विकेट्स। ये तो करना होगा, दबाव आउटफील्डर पे जरूर डालेंगे तभी गलतियां होंगी, आपको बाउंड्रीज मिलेंगी। अगर आप सिर्फ एक ही ले भागेंगे तो एक ही मिलेगा आपको, कुछ करना होगा। अभी फ्रेश आए हैं राजा मेहरबानी, 24 मैचेस खेल चुके हैं, 654 रन्स, स्ट्राइक रेट भी लगभग थोड़ा सा एवरेज से नीचे है, और 350 नंबर 3 पे आके अगर आप स्टेडी करते हैं अपनी टीम की पारी को, तो ये आपका रोल है, शीट एंकर रोल। और इसी के साथ दूसरे छोर से अगर आपके पास स्ट्रोक प्लेयर हैं, थोड़ी सी अब चेहरे पे राहत है भोजपुरी कैंप में। एक विकेट आ चुका है, शुरुआत हो चुकी है विकेट्स की। एक अच्छा ओवर जो है पूरा मैच कई बार पलट देता है, T20 में देखा गया है। अच्छे खासे स्कोर बन रहे हो, एक विकेट चली जाए, अगला बल्लेबाज आते आते उसे समय लगता है लय में आने में। वाइड गेंद बहुत बाहर, अच्छी तरह से छोड़ दिया मेहरबानी ने। और मुझे लगता है इस समय मेहरबानी को किसी तरह स्ट्राइक निकाल के कोचर को देनी चाहिए, क्योंकि कोचर को अगर आप उनका लय, उनकी रिदम जो है अगर आप ब्रेक कर देंगे तो शायद दिक्कत आ जाए। वो अच्छी फॉर्म में है, 13 गेंदों में 31 रन बना चुके हैं, तो उन्हें ज्यादा स्ट्राइक दें। जी हाँ, बिल्कुल, मोमेंटम पूरी तरह मुंबई हीरोज के साथ है और स्ट्राइक रोटेट करना बहुत ही जरूरी। विकेट जरूर खो दिया है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा डॉट बॉल्स नहीं खेली जा सकती। यामा रेव्स योर हार्ट। अब कुछ यहाँ CCL में और यहाँ पे कुछ चिंताजनक चेहरे, और इधर एयर इंडिया ऑल द वे। एयर इंडिया का नाम आते ही रितेंद्र सोढी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके साथ 5वां ओवर खत्म हुआ, 44 पे 1। हमारे स्कोर कार्ड के हिसाब से ओवर हो चुका है, एक नो बॉल थी तो शायद उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और चलिए एक गेंद और मिलेगी। अच्छे तरीके से खेल दिया है, पॉइंट की दिशा में 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक भी रोटेट यहाँ पर। ओवर की समाप्ति 45 पर 1। They have lost the wicket of Ritesh Deshmukh, and that has put some brakes on scoring. Raja Meherwani taking his time. Operation Restore. 100 seeks to restore the lives of women victims of acid attacks and promotes skin donation. ओ निकल गया, और आउटफील्ड इतना तेज है कि कोई मौका नहीं है इसको दौड़ के पकड़ा जाए। खराब गेंद और बाजी जो है लेग स्टंप के बाहर जब जाते हैं तो फिर तो फ्री हिट है। हल्का सा बल्ला लगे और 4 रन पक्के। हालांकि शॉर्ट फाइन लेग काफी फाइन रखा हुआ था, पर इतनी तेज गई बॉल, और ये बताता है मुझे यहाँ पे बड़े रन बनने वाले हैं। मेरे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में आए अजय मेहरा। अजय मेहरा बहुत बढ़िया ढोल बजा रही है छोटी सी बच्ची। शुक्रिया अतुल। जी हाँ बिल्कुल, और मजा आ रहा है मुकाबले का। बिग ब्रदर फाउंडेशन की बात करें जो सचिन जोशी की है, ये अब 1000 रुपए डोनेट करती है प्रति रन, और ये इनिशिएटिव है जो ऑपरेशन 100 रिस्टोर की तरफ, तो बहुत बढ़िया पहल है, जबरदस्त पहल है और सही दिशा में पहल है। पर जैसे आपने कहा, इस सिंगल के साथ अब अर्धशतक पूरा होता हुआ 50 रन बोर्ड पे, और अतुल शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है। अगर आप देखें कोचर जिस लय में है, उनको एक बड़ी पारी खेलनी होगी, तब्दील करना होगा इस स्टार्ट को, पर इसी की दरकार थी मुंबई हीरोज को। बहुत देर बाद स्ट्राइक मिला है समीर कोचर को, जो एक टेम्पो बनता है वो ना टूट जाए। समीर कोचर के लिए बहुत जरूरी है कि अब इस शुरुआत को वो एक बड़े स्कोर में तब्दील करे। यहाँ पे 200 रन बनाए जा सकते हैं जिस तरह से विकेट है और आउटफील्ड है। हवा में खेला है पर ठीक है, सीधे बल्ले से खेला, पूरा थोड़ा सा जो और एलिवेशन था वो मिला नहीं उन्हें। यार मुझे लगा भाग्यशाली रहा अतुल, क्योंकि अगर टाइमिंग और बढ़िया होता, सीधा हाथ में जाता मिड ऑफ फील्डर के, तो थोड़ा भाग्य ने साथ दिया। ये देखिए राउंड द विकेट गेंदबाजी करे, वो एंगल भी आसान ही रहता इन फील्ड को क्लियर करने का प्रयास। मनोज तिवारी अब फील्डर मिड ऑफ के कप्तान भी हैं। अगर आप CCL सुपर फैन है, जल्द से जल्द कॉल करिए 5333 599 पे। और इस बार क्रॉस लाइन खेलते हुए यहाँ पे रन मिलेंगे, गैप में खेला है, तेज आउटफील्ड और 4 रन मिलते हुए। अब ये एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है समीर कोचर का, यहाँ पे काफी रन बनाते हैं।
नहीं, मुझे लगता है कि क्लैरिटी है माइंड में कि भैया आगे की बॉल उड़ा के मारना है, और जिस तरह बॉल घूम जाएगा उसी तरफ सीधा बल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अक्रॉस द लाइन खेल जाएंगे तो बोल्ड हो जाएंगे, पर जानते हैं कि एक बार इनफील्ड टप गया फिर बाउंड्री पक्की है। और ये सोच जो है कि हर बॉल पे अटैक करना, ये उनकी टीम के लिए अच्छी खबर, क्योंकि कई बार आपको गेंदबाजी आपको ना मिले, बल्लेबाजी के लिए आपको गेंदें ना मिले तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये और ऐसा लग रहा है 3 या 4 ग्लास बूस्ट के पी के आए हैं, क्योंकि एनर्जी नजर आ रही है जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं आज जमीर। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और एक अच्छा स्टार्ट अभी तक मुंबई हीरोज के लिए। फिर से थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गैप में खेला, यहाँ पे एक और बाउंड्री मिलेगी, ऐसा लग रहा है रफ्तार पकड़ ली है और इस अब शताब्दी को रोकना बहुत कठिन। तो मुझे ये लग रहा है कि फिरवानी को भी अब इसी से कुछ सीख लेनी होगी, या टाइम नहीं है। आपको पता है कि विकेट इतना जबरदस्त है और ये बेहतर होता चला जाएगा, और जब तक बॉल नया है तब तक इसको एनकैश कर लें। और आउटफील्ड देखिए कितना तेज, ऐसी तरह लग रहा है कि गोली की तरह बॉल जा रहा है। या बिल्कुल सही कहा, और बोलते हैं कि यही कारण है कि या तो आप वहीं पे डाइव करें, चेज करना लगभग नामुमकिन है, इतनी तेज आउटफील्ड है, आपको वैल्यू फॉर योर शॉट्स मिलती है। इस बार फिर से यहाँ पे और रन मिलेंगे, ओहो सीधा फील्डर के हाथ में गई और अब गेंदबाज खुश नहीं। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त होता हुआ 59 पे।